Hello, guys. Good afternoon, sir. Yes, good Good afternoon. afternoon. Yeah. Good Very, afternoon, sir. very good afternoon to all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Bala. Sorry, today we are late. So extremely sorry. I break the integrity. So again, sorry. Now we will directly start the clinical part of this book, Theory of Acute, the second book of Dr. Praful Vijay Karsar, Reductive Homeopathy. And क्लिनिकल पार्ट में हमने कल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल हिंट्स देखे थे. नाउ वी विल सी द केसेस. सो फर्स्ट acute case of 6-year-old child. He was suffering from fever since 2 days, and when his x-ray was done, in X-ray, right-sided mid-zone pneumonic consolidation. Yes. So that 6-year-old boy was suffering from pneumonia. And fever was 103 degree Fahrenheit. The child was quiet. देखो उसका एक्टिविटी क्या था. The child was quiet, sleep was less. That means क्वाइट है लेकिन स्लिप लेस है ना. इसका मतलब क्या है? एक्टिविटी डिक्रीज बट नॉट स्लीपी, ओनली डलनेस. सो डिड नॉट wanted to sleep was less and wanted to open his books and read during fever. देखो, that means diligent, conscientious during fever, studious during fever. So dull and studious, that means diligent. So did not trouble the mother. Again, did not trouble the mother. Mother had brought the child with a blanket. Yes, blanket wrapped around with a warm sweater inside. Blanket bhi hai upar se aur sweater bhi hai. That means very chilly. So activity dull, not sleepy. That means activity dull, chilly, and diligent. Studious during fever. Which remedy? First. Ignitia. No. Silesia. Yes. Silesia. Silesia. Very nice. Very good answer. Yes. So all these did not disturb or discomfort the child, indicating he was chilly at that stage. No thirst at all. One thing which was peculiar was that this child was mild, quiet, would hit his father, but very slowly, cautiously. So he was though angry with the father, but friendly to all in the clinic. So dull, chilly, thirstless, and the remedies: sepia, gelsemium, acid phos, ignitia, Staphysagrea, natrum carb, ipecac, China. सिलिशिया कहाँ आया? Staffy रहेगी सर. But very close to Cilicia, क्योंकि Cilicia does not trouble the other, है ना? That's why you have told me Cilicia. तो Cilicia का वो इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि Cilicia किसी को ट्रबल नहीं करना चाहता है, लेकिन Cilicia में एक्टिविटी नो चेंज होता है. और ही वाज, मैंने 3 बार बोला कि एक्टिविटी डिक्रीज है, फिर भी आपने सिलिशिया आंसर दिया. ओके, नो प्रॉब्लम. सो बट यू आर वेरी क्लोज टू सिलिशिया. लेकिन सिलिशिया हमेशा ध्यान में रखना, सिलिशिया में एक्टिविटी नो चेंज होता है, राइट? बट हियर diligent remedies are acid phos, ignitia, Staphysagrea, and natrum carb. No craving for repressing drinks,
Ignitia, Staphysagra, and natrum gas. And no misanthropy, not unfriendly, no effect of study, Ignitia, Staphysagra. So which was the remedy? So Ignitia and Staphysagra coming up means the child has had some mental cause for fever. Mean that which was the mental cause. So either the child was insulted or hurt. Yes. Hurt hai to Ignitia. And अंदर है तो स्टेफी insulted hai to Staphysagra. So a direct confirmatory question was asked what had occurred before the fever. This is the confirmatory question. Last में देखो कैसे जीरो डाउन किया सर ने यहाँ मेडिसिन को. Yes, so the answer confirmed the drug. The child had been so scolded by the father for not keeping things in a proper way, in a proper place, after which the child was not angry but hurt. देखो, the child was hurt. उसको पप्पा का गुस्सा नहीं आया, है ना, गुस्सा आता था, वो दबाता था तो Staphysagra. And he went into brooding with giving any expression, after which he got fever. So brooding is the Ignitia. confirmatory and strong rubric or definition of the Ignitia. So Ignitia 30 single dose was given. And after one dose, fever increased. This is the primary aggravation. 103.5 degree Fahrenheit at night of 18th, and cup increased at the night. So fever, next fever came to the normal on 19th. Appetite improved, thirst increased, child started playing around. So after that, consolidation का क्या हुआ? Lung consolidation, that is the pneumonitis, showed complete regression of lungs pathology after 7th day. So here in this case, things to note are scolding was an action. Scolding was an action. तो जो उसे father ने डांटा, that was action, and his reaction was hurt, right? Yes. So Staphysagra reaction would have been giving vent to his anger in some way. Yes. तो Staphysagra अगर होता था तो Staphysagra को गुस्सा आता था, और वो गुस्सा कैसे करता था? गुस्सा फादर के सामने सप्रेस कर देता था और अपने रूम में जाके वो किसी चीज को हिट करता था. दैट इज Staphysagra. वो सामने जिसका गुस्सा है उस पे कभी गुस्सा नहीं निकालेगा, गुस्सा वो ऐसे चीजों पे निकालेगा जिससे कुछ नुकसान नहीं. So some way or other, for example, kicking, throwing things, or showing anger on the people whom he knows will cause him no harm. For example, mother, है ना, उसके anger brothers, like this. So this is Staphysagra, but उसे गुस्सा आया नहीं. उसने क्या किया? डांटने के बाद, स्कोल्डिंग के बाद, he was hurt. So, but Ignitia being more cultured and intellectual constitution, good boy, good girl image, broods as a reaction. है ना, मुझे क्यों मारा होगा, मुझे क्यों मारा होगा, बस मुझे मारा, ऐसा brood करते बैठा, feels bad, hurt, and broods which Staphysagra does not. So that's why he was Ignitia. So Ignitia was selected over Staphysagra. This subtle difference in reaction gives us the right simillimum and desired result. Yes. Staphysagra और Ignitia का मेन डिफरेंस क्या है आपके समझ में आया होगा इस केस पर से, और किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, किस तरह से केस एक्यूट में सॉल्व करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्यूट थर्मल थ्रस्ट एक्सेस चार्ट. बहुत ही अच्छा सर ने केस दिया, एनालिसिस दिया. यस, वेरी नाइस. नाउ द केस नंबर 2. A girl aged 10 years with
high fever since 5 days, coughing day and night, and fever not responding to antibiotics. And other allopathic line of treatment. She had come to me after a gap of 2 years. The mother said, after you treated her last for a recurrent cough and cold and asthmatic bronchitis, she was just fine. She could eat and drink cold things and any trash, but she never really fell ill. Therefore, when the doctor could not cure her with antibiotics, I thought of coming to you, especially since he said she was to be X-ray. I looked up her registered case and found she had responded excellently to a dose of Pulsatilla 200 2 years back. So this is a chronic case of bronchial asthma, and before 2 years she was responded to Pulsatilla. But abhi kya hua? I looked at the girl who did not look sick, sitting calm and quietly on the chair. As I told her to lie on the examination bed, she got up promptly and followed the orders. The mother said, yes, she is not worried about her fever, cough. She is more worried about me. That means that girl more concerns about the mother's health, not for self. She says she wants to help me, even for water, which she is drinking a lot. She gets up on her own and drinks so that I don't get trouble. She feels cold and lies with a thick blanket. Now tell me the remedy. Delicious. Yes. Activity, Yes, sir. no change. Chilly. No change. Does not troubles to others. Yes, sir. So I got Yes, sir. her X-ray chest done and blood CBC done. X-ray showed left-sided pneumonia and WBC count was 18,000. In the above case, I perceived that she had first of all shifted from Pulsatilla, which had cured her of the asthma. She was no more hot or anxious, weeping Pulsatilla type. Fever had not changed her activity. She was neither dull nor anxious. She was chilly, thirsty. Above all, she was a good girl, obedient and caring towards her mother. So the good girl type, that is Cilicia, which has no change of activity, thirstless, chilly, was prescribed. So fever, Both are in relation, sir. degree. The same night fever was same. Next day, fever was gone, no cough, lethargy was observed, and X-ray shows clearing and complete regression of lumps on the 4th day. WBC count become normal. So this is Cilicia. So first of Ignitia, now Cilicia. तो कितने अच्छे केसेस सर ने यहाँ दिए हैं, समझने के लिए भी इजी है, सिंपल है, और इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हमें ये सीखनी है कि किस तरह से सर ने इसका एनालिसिस किया है, और एनालिसिस भी कितना सिंपल है बट बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है। तो इस तरह से एक्यूट में हमें केसेस देखना है। नाउ द थर्ड केस, अगेन फीवर in 3 years old child. The child wanted to be carried continuously, wanted to go out of the house where he was comfortable. If kept down, would constantly hold mother's hand.
If the mother went away, he would cry and force her to come back. This is the child head was for cold water, but he would sip and even force the mother to sip. मतलब thirst कैसी है? Sips of water. If she would not, she would start crying. He did not bear any covering on him. That means hot patient. The case was studied this. Thus, general activity increase. That means mental anxiety. And activity increase mental anxiety में pulsatilla sulfur apis. He was hot, so the all three remedies are hot. First was sips of water. So इसमें sips of water pulsatilla. So actually thirstless, but sips often and wanted mother also to sip. He was drinking only to keep his mummy near and occupied. Yes, the child wanted her attention. So always wants mother near. Which remedy? Pulsatilla. Yes. So mental anxiety increase, anxious, hot, thirstless, wanted to hold mother's hand, wanted consolation. That is the pulsatilla. Wants to be carried always. That is pulsatilla. Pulsatilla was the remedy. So after pulsatilla, allopathic doctor had frightened the parents that the child might go into leukemia. Why? Because WBC count was 28,000. HB 9.3 and neutrophils was 76. And after pulsatilla, child was playful, fever gone, no medicine, and after that WBC count become 19,000 HB 9.3 and neutrophils come to normal. And in third day, after 10 day, WBC count complete normal and HB also increase. So this is the pulsatilla. तो देखो इसमें जो मेडिसिन दिए एपिस पल्सेटिला इग्निशिया स्टेपिसाग्रिया सिलिशिया these are all the acute remedies. Only sulfur is a chronic remedy. Now the case number 4, acute otitis media. Very short case, simple cases are given here. Girl age 8 years complains of acute pain in right ear. आपको पता है मोस्टली क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट शुरू होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट शुरू होती है और बीच बीच में 2-3 कंप्लेंट ऐसे कि बहुत तकलीफदायक होते हैं पेशेंट के लिए भी सिवियर पेनफुल होते हैं, पैनिक होते हैं और हमारे लिए उससे भी ज्यादा हेडेक फुल होते हैं. तो वो कौन से कंप्लेंट्स है पेशेंट के? मोस्टली ये कंप्लेंट पेशेंट लेके आएगा तो बहुत ही परेशानी होती है. फर्स्ट ईयर एक, देन टूथेक, एंड थर्ड वन इज बोलो Skin problem. Hemorrhoids. which Skin problem. Headache. नहीं स्किन प्रॉब्लम एक्यूट में नहीं आता है. Hemorrhoids. Piles fissure. No, piles also chronic case. Abdominal pain. Tonsillitis. Abdominal colic. No. जिसमें पेन पेशेंट बियर ही नहीं करता है और कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है. Migraine. हेडेक या फिर टूथेक एक ही टाइप के हो गए. तो थर्ड वन इज बर्निंग मिक्चुरेशन, राइट? एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब क्रॉनिक केस होती है और ऐसे ये 3 कंप्लेंट अगर पेशेंट को आते हैं एक्यूट में
तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि मोस्टली अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा है या फिर टूथेक है तो पेशेंट बियर नहीं करता है और कुछ ना कुछ लेके उसको सप्रेस कर देता है। अगेन उसका जो क्रॉनिक डिजीज है वो अगेन एग्रीवेट हो जाएगा। यस, ये मोस्टली प्रॉब्लम आते हैं हमें जब हम क्रॉनिक केसेस को ट्रीट करते हैं, राइट। सो ऐसे केसेस में फिर क्या करना चाहिए? जब क्रॉनिक केसेस की क्रॉनिक डिजीज के लिए ट्रीटमेंट शुरू होती है, और ऐसे ये मोस्टली 3 प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो पेशेंट रुक ही नहीं सकता। तो सर उसको कैसे रोकना है फिर? हाँ, होलिस्टिक अप्रोच से सर वही तो मेडिसिन पूछ देना रहा हूँ चाहिए। मैं भी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था, आप लोगों को शायद पता हो। सर टोटल हिस्ट्री लेके ही जो मेडिसिन ये कवर करे सब चीजें, वो होलिस्टिक अप्रोच से ही देना चाहिए सर। नहीं सर, आपने कोई ना कोई को तो रोका ही रहेगा ना। सैक्लेक देना पड़ेगा। फर्स्ट यू गिव द सैक्लैक। ये सैक्लैक से भी नहीं हुआ, पेन इज कंटिन्यूअस, देन अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कवर कर रही है तो उसे आप 1 डोज डाइल्यूट करके दो, दैट इज द बूस्टर डोज जिसे हम बोलते हैं, डाइल्यूट करके देना है, या फिर फाइनली ड्राई कैसा डोज देना है, या फिर ड्राई डोज देना है, ड्राई डोज। और उससे भी नहीं हुआ, और अगर उसकी कुछ एक्टिविटी चेंज है, थर्मल थ्रस्ट चेंज है, तो गिव द एक्यूट। लेकिन एक्यूट रेमेडी चेंज करने के बाद, मोस्टली तो एक्यूट रेमेडी देना नहीं है, लेकिन बहुत ही सीवियर हो रहा है, बहुत ही सीवियर, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल देने के बाद भी कम नहीं हुआ, तो फिर हमें एक्यूट के लिए सोचना है। लेकिन एक्यूट के लिए हमें -0.5% सोचना है, -0.5%। फर्स्ट, ऐसे केसेस में एक्यूट रेमेडी जब हम देते हैं तो पूरी केस वापस रिवर्स हो जाती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत बार ऐसा हुआ है, हमने देखे हैं ऐसा। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत बार ऐसा हुआ और केस पूरी रिवर्स हो गई। इसीलिए मोस्टली ऐसे कंडीशंस में एक्यूट रेमेडी नहीं देना, राइट। सो सर ऐसे केसेस में अगर हिस्ट्री लेके मेडिसिन है उसके रिलेशनशिप में एक्यूट मेडिसिन दे सकते हैं क्या अपन? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ मैं, एक्यूट रेमेडी नहीं देना। एक आधी बार आपने पेशेंट को पेन किलर दे दी तो उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में कोई ज्यादा ये नहीं आएगा डिस्टरबेंस, लेकिन एक्यूट रेमेडी से काफी डिस्टरबेंस वहां पे आता है, पूरी केस डिस्टर्ब हो जाती है, इवन स्पॉइल हो सकती है, स्पॉइल होने के भी चांसेस होते हैं, राइट। तो मोस्टली ऐसे केसेस को एसएल देके कैसे तभी उस, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड होता है, उसे हमें निकालना होता है, पास ऑन करना होता है, तो कैसे भी करके उसे पास ऑन करो ओनली। यस सर। ओके, सो नाउ द केस 5, case of typhoid. Girl age 16 years suffering from typhoid, having serum Vidal test positive for Salmonella typhoid. A titer was 350 units, presented with a history of fever since 6 days, not responding to antibiotics. She presented as a silent, quiet girl, more or less sullen looking, answering my questions with a constant frown. Sullen looking, less sullen looking, or answering my questions with a constant frown. The mother told me that since she is unwell, she is being
sitting and her room and only wanting, sitting in her room and only wanting me to be in the room as company. मतलब one wants one person in a room. She hates me. Anybody questioning her about her illness, she would love to be under the fan constantly, even when the fever was high. Yes, मतलब she would love to be under the fan constantly. That means hot patient. She loved only to drink cold water, that means thirsty, and was averse to eating food or reading books. So the analysis of this case is she is quite silent, that means dull, then hot, wanting fan, hot, and want cold water is thirsty. So dull, hot, thirsty, and wants only one person, that is averse visitors. Irritated when oblique to answer, that is iota, and wants loneliness but wants one person in the room. Tell me the remedy. Natromure. Natromure. Very nice, very simple, very easy. She was given natromure single dose, fever was gone. The next day started going out, and on third day to her college, Vidal titer high, and not the patient resumed normal activity within 24 to 48 hours. The homeopathic dose, the similimum. For the other indication, mathematica, yes, 107 पे natromure दिया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं. Yes. So natromure 200 was cured her typhoid. So this was the case. Now the sixth case of UTI, jaundice and bronchitis. A Parsi child की केस है. इस पर से एक बात याद आ गई मुझे. सर, Dr. Vijayakar sir was practicing in Parsi area, right? So sir knows the languages of Parsi, then Gujarati, then Sindhi, then Marwadi also, and Hindi, Marathi, English. So पारसी तो सर बहुत ही अच्छी बोलते थे. पारसी केसेस इसलिए सर के पास बहुत हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बांद्रा एरिया पूरा पारसी है इसलिए. और सर को पारसी और गुजराती बहुत अच्छी आती थी. So a Parsi child aged 2 years was brought to me, crying continuously with urine, first cell count 40 to 60, serum bilirubin 1.7, and the chest severely congested. So UTI, jaundice, and bronchitis, triple. The child was constantly crying and wanting to be carried. I saw the mother trying to distract the child by showing her electric switches. कैसे तभी चुप हो जा, इसलिए उसे electric switches बार बार mother दिखाती थी. The child would keep quiet for some time, seeing the switches, and cry again. It was having intolerance to fan. Intolerance to fan, that means chilly patient. Drank no water, that means thirstless, and the face had a reddish discoloration around the mouth. When I heard the child cry, it was a piteous and nagging, like this. The anxious, cranky, chilly, thirstless exists and made me ask her a confirmatory question.
of whether she bores into the nose. The answer was yes. Her hand has to be pulled away from her nose again and again and again. Continuous boring in the nose came the reply. And the remedy is Sina. Next day, mother reported that the child asked for food. Very nice. After 4 days and was less cranky, played for a little while alone. Pus cells 80 to 90 and cup was more, but because pus cells are particular and both, yes, pus cells are particular and both were as generals of appetite was better, playing away from the mother was a general improvement. So I waited with placebo and after 4 days, fever had gone, pus cell become normal, serum bilirubin become normal 1.1. The child was transformed into a playful, cheerful, independent, naughty child. X-ray chest shows on 6th day, normal, clear, and Sina worked as an antibiotic, antipyretic, anti-jaundice, and B-complex all in one. And all this is one dose of Sina. So this is an excellent case. So 6 cases हमने यहाँ देखे, इसमें आपको कोई क्वेश्चन? ऐसी केस अगर एक्यूट किसी के पास होंगी तो यहाँ शेयर कर सकता है, बता सकता है. यस, ओरली भी बता सकते हैं. सर कल ही मेरा एक सर पहले केस में बोलिए बोलिए. हेलो, बोलिए. पहले केस में 30 पोटेंसी क्यों दी? यस, पहले केस में 30 पोटेंसी क्यों दी, है ना? हाँ सर. क्यों दी होगी बोलो, एक अंदाजा. यस, प्रशांत खाडेव जी, आपको अंदाजा आ गया शायद. नहीं मैं एक केस बता रहा था सर. अच्छा अच्छा. शायद वो बच्चा था इसलिए, छोटा बेबी था इसलिए 30 दी. छोटे बेबी का और 30 डोज का क्या संबंध? अवेलेबल नहीं होगी. यस, वेरी नाइस, गुड आंसर. जो पोटेंसी अवेलेबल थी वो दे दिए. ऐसी एक केस थे, देखो, थायराइड की ग्वाइटर की केस थी. सर ने हमें दिखाए थे एक वर्कशॉप में. तो ये ऐसा बहुत बड़ा ग्वाइटर था जो कंप्लीट रिग्रेस हो गया, कंप्लीट क्योर हो गया विथ इग्नेशिया 1M डोज से. इग्नेशिया 1M. अब वो तो ग्वाइटर था, कंस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी थी वहां पे. अब वहां पे 1M क्यों दिया, है ना? पूरी केस सर ने दिखाया, एनालिसिस इतना एक्सलेंट सर ने उसका एक्सप्लेन किया बहुत ही, कि वो केस सर के एक्चुअली सर विले पार्ले में CMT कॉलेज में ओपीडी में जब जॉब करते थे, ओपीडी देखते थे, ओपीडी के सर हेड थे. तो वहां पे वो केस आई थी और डॉक्टर प्रफुल्ल बोरकर सर ने वो केस ली थी. फिर बोरकर सर ने बहुत ही अच्छी, बहुत ही डीप वो केस लिए, बहुत ही डीप. और बोरकर सर आए केस लेके और बोला, आज तो विजयकर सर बहुत ही खुश होंगे ये केस देख के, क्योंकि मैंने इतने डिटेल में ली, 4-5 घंटे केस चली. बोरकर सर बहुत ही इसमें थे कि नहीं, आज सर मुझे एक्सलेंट, गुड, कुछ तभी कहेंगे. तो सर
आए सर बैठे और बोरकर सर ने केस शुरू की। सर ने कुछ कंप्लेंट सुने, वो पेशेंट की तरफ देखा और सर खड़े हो गए और सामने पेशेंट के पास गए। वो पेशेंट वो लेडीज थी और उसके खांधे पे हाथ रख के बोला, माँ जी आपका बेटा आपको बहुत तकलीफ देता है क्या? एक ही क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा सर ने, तो ढसा 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 वो लेडीज रोने लग गई जोर जोर से। सर ने बोलकर सर को बोला, इसको इग्निशा 1M दे दो। तो बोरकर सर को बहुत गुस्सा आया। 4 महीने इतनी बड़ी केस दी, 4-5 घंटे लग गए। सर ने कुछ देखा नहीं पूछा नहीं, डायरेक्ट बोल दिया इग्निशा दे दो। अब इग्निशा देखी, देखते देखते रिजल्ट आता गया। फिर मैं सर को बोलूंगा कि सर आपने केस सुने नहीं, वैसे ही बोलूं। 1 महीने बाद पेशेंट वापस आया तो उसका गोइटर और बढ़ गया। बोरकर सर और खुश हो गए। हाँ, मैंने बोला था कि इग्निशा नहीं है ये। सर बोले ऐसे ले दो 1 मंथ का, 1 महीने बाद बुलाओ। फिर 1 महीने बाद और सर को क्यूरियोसिटी की, अब क्या होता देखती। तो 1 महीने बाद जब पेशेंट आया तो दैट गोइटर बिकम हाफ। बोरकर सर सोचते रहे कि ये कैसे हुआ। फिर एक 5-6 महीने में वो एकदम रिग्रेस होके एकदम स्मॉल हो गया। तो ये केस सर ने हमारे को बाद में वो पूरा क्योर हुआ। सर ने फिर ये केस बताया और फिर एक क्वेश्चन, एक डेलीगेट ने ये क्वेश्चन पूछा, सर 1M पोटेंसी क्यों दिया आपने, वो तो साइकोटिक केस थी। बोरकर सर ने उस वक्त आंसर दिया था कि कॉलेज में 30 पोटेंसी अवेलेबल नहीं, इसलिए 1M दिया था। तो सर ने इस पे ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि सर आपने तो बताया कि साइकोसिस है तो 30 पोटेंसी, सिफिलिटिक है तो 200 मीडियम पोटेंसी और सोरिक केसेस है तो 1M पोटेंसी या फिर हायर पोटेंसी देनी चाहिए। फिर यहाँ पे ये पोटेंसी ने वर्क कैसे किया? तो सर ने ये कहा था कि ये योर रेमेडी इज राइट एंड एग्जैक्टली राइट, परफेक्टली सिमिलिमम, फिर आप उसे कौन से भी पोटेंसी में तो वर्क करेंगे, लेकिन वो उतनी परफेक्ट सिमिलिमम होनी चाहिए कि उसमें -0.5 भी या फिर -0.005 भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो वो कौन सी भी पोटेंसी में तो वर्क करेंगे। यस, हेलो सर। और कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था मेरे को, कितने बाप रे, 2002 में सर ने ये केस दिखाए थे, तब का याद आ गया पट से। सर गोइटर केस क्या आपने बोला कि सर ने बोला था कि आपका बच्चा परेशान करता है और बच्चे की वजह से लड़का आपको बहुत तकलीफ देता है क्या? तो कैसे सर, गोइटर होने से यही काम हो रहता है? गोइटर मीन्स इमोशन सप्रेस, ग्रीफ, एक्साइटमेंट, एंगर, ये सब सप्रेस होता है, इसलिए गोइटर होता है। सर क्रॉनिक केस अगर चालू है, पेशेंट को कुछ ना कुछ तो तकलीफ होंगी ना। जैसे अगर डायबिटीज है तो उसको कोई भी इमोशन या किसी वजह से एक्यूट पेन हो सकता है या एक्यूट कंप्लेंट हो सकती है, तो फिर मेडिसिन देना पड़ेगा ना सर। नहीं, दूसरी एक्यूट मेडिसिन देना पड़ेगा ना फिर वैसे वक्त। कैसा है, आपने स्टार्टिंग में बोला कि चालू केस, जैसे डायबिटीज अगर पेशेंट को है, समझो एक आधे पेशेंट को डायबिटीज है, ट्रीटमेंट चालू है और बीच में चालू है, केस चालू नहीं ना? नहीं। तो मोस्टली अभी मैंने चालू केस को बिघडा मत है ना। नाही सर, मला असं विचारायचं आहे की आता आलं माझ्या complaint- लक्षात आलं, आय एम जस्ट जोकिंग।
I'm just kidding. तो कैसे है कोई भी क्रॉनिक केस, कौन से भी डिजीज की क्रॉनिक केस रहो, उसे पहले मतलब वो कोई एक्यूट कंप्लेंट आपके पास लेके आता है, कोई भी, अब वो एक्यूट कंप्लेंट कुछ भी हो सकता है। मैंने जैसे अभी 3 एग्जांपल आपको दिया कि यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, टूथेक एंड ईयर एक, ये मोस्ट कॉमनली डिजीजेस है जो एक्यूट में आते हैं क्रॉनिक केसेस में। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये ROS है क्या, इसके बैक हिस्ट्री में ये सिम्टम्स थे क्या, ऐसा कुछ होके गया है क्या। ROS होगा तो मतलब आंखें बंद करके आपको SL लेना है, कुछ भी करना नहीं है, गिव द SL, वो ROS है, निकल जाएगा, ओरिजिनल ऑफ रिटर्न ऑफ ओरिजिनल सिम्टम। सबसे पहले आपको ये चीज देखना है। अगर ये नहीं है, उसे वो एक्यूट प्रॉब्लम है, कुछ भी नया है, तो सबसे पहले आपको सोचना है, अगर उसमें उसका एक्टिविटी या फिर जनरल पैरामीटर्स टोटली डिस्टर्ब है, उसे वीकनेस डलनेस फील हो रहा है, तो सबसे पहले आप उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में सोचो कि वही रेमेडी इसे कवर कर रही है क्या। तो उसका आप एक सिंपल ड्राई डोज या फिर पार्शियल डोज दे सकते हैं। पार्शियल डोज जैसे कि उस डोज को डाइल्यूट करके आप 1 चम्मच पानी पिला दो, हो गया। अगर वो नहीं है, या फिर ड्राई डोज दो कि कंप्लीट, आप अगर लैक्टोज पाउडर यूज कर रहे हैं तो पाउडर, थोड़ी सी पाउडर लो, उसके ओनली सिंपल 1 डोज डालो, उसको पूरा प्रेस करो, ड्राई होने दो, कागज को पूरा सोक करने दो, बाद में उसे दो। या फिर वो एक्यूट केस है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल उसे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उसे कवर नहीं कर रहा है, तो देन यू कैन थिंक अबाउट द एक्यूट रेमेडी। और बट वो रेमेडी उसके मेडिसिन रिलेशनशिप में होनी चाहिए। यस, अंडरस्टैंड? पूरा समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ सर, समझ में आ गया सर कि चालू केस में दवाई समझ के देना चाहिए। चालू केस मत बोलो यार, मतलब रनिंग केस। हाँ क्रॉनिक केस बोलो, चालू केस मत बोलो। अच्छा, जिसने सवाल पूछा था वो मैडम का आवाज ही नहीं आया। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बरोबर। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन, क्वेरी? वाटर डोज भी दे सकते क्या सर? वाटर डोज का मैंने आपको हैनेमन हिंट्स में बताया था कि जितनी वाटर डोज में मेडिसिन पावरफुल एंड फास्टली एक्ट होती, वैसे डायरेक्ट डोज से भी एक्ट नहीं होती। उसके एक्शन वाटर डोज से बहुत फास्ट आती है, क्योंकि आवर मेडिसिन आर वाटर सोल्यूबल। सर वाटर डोज सिर्फ, यस, LM पोटेंसी में तो वाटर ही यूज करते हैं ना। हाँ मस्त आता है। Someone else? हेलो सर। Yes. सर, ये जो केस होता है सर, बीपी का केस, ब्लड प्रेशर का केस सर। हेलो, हाँ, आपका साउंड बहुत लो आ रहा है। हेलो सर। हेलो हाँ, बोलिए। सर, ये जो केस होता है हाइपरटेंशन का, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल, लिपिड के जो कंपोनेंट है वो बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए हम लोगों का एक्सपेक्ट क्या होना, मतलब किस बेस पे हमको क्वेश्चन करना चाहिए, कहाँ से सिम्टम को ढूंढना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है इसका सर? ब्लड प्रेशर, दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डिपोजिशन हो गया है ना। जी सर। और बीपी बढ़ गया, तो रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, है ना। जी सर। और प्रेशर है, दैट मीन्स क्या है, कहीं तभी कुछ तभी किसी तभी बात का कंटिन्यूअस सपरेशन हो रहा है। फिर क्या हो रहा उसमें है सर? क्या सप्रेशन हो रहा है सर? कंटिन्यूअस किसी तभी बात का सपरेशन हो रहा है। अब ये कौन सी बात का सपरेशन हो रहा है? तो मोस्टली इमोशंस, एक्साइटमेंट, ऐसे कुछ बातें हैं जो कंटिन्यूअसली हो रहे हैं उनके लाइफ में, और वो पेशेंट कुछ नहीं कर पा रहा है, ओनली सप्रेस 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 सप्रेस। कई ऐसे बहुत से व्यवहार हो जाते हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं, हम कुछ में कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत से केसेस ऐसी हो जाती है कि हमें समझता है, मतलब मैं पेशेंट का बोल रहा हूँ कि हमें समझता है लेकिन हम कुछ कर पा नहीं रहे।
हाथ कट गए, है ना, कि भाई दिख रहा है कि नुकसान हो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसे केसेस में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लॉकेजेस आएंगी आर्टरीज में, डिपोजिशन होगा, मतलब इमोशन का सप्रेशन हो रहा है। इमोशंस, एक्साइटमेंट, उसमें फियर, फ्राइड, ग्रीफ सब कुछ आ जाएगा। अच्छा अच्छा। हेल्पलेसनेस फीलिंग। कंटिन्यूअस स्ट्रेस। तो ऐसा पार्टनर से रिलेटेड नहीं है सर, क्योंकि वो मैंने न्यूज वो जो, अब ये बात तो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि वो जो मैंने ये जो पीडीएफ फाइल है ना वियतनाम की, उसमें देखा था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन पार्टनर को लेकर दिया था, जो है उससे कॉन्फ्लिक्ट है, तो मेरे को समझ में नहीं है। बहुत लोगों एलिमेंट ऑफ एक्साइटमेंट, इमोशंस, मेंटल इमोशन सप्रेस। अब ये किससे भी रिलेटेड हो सकते हैं, पार्टनर से भी रिलेटेड हो सकते हैं ना, कि आपका पार्टनर ऐसा है कि आपको ना जीने दे रहा है ना रहने दे रहा है, राइट? घर में आए तो प्रॉब्लम, बाहर गए तो भी प्रॉब्लम। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? कहीं से भी हो सकता है, मतलब किसी से भी हो सकता है, पर्टिकुलर कोई नहीं है। जैसे हम लोग पेट में देखते हैं कि अपर लार्ज इंस्टाइन का कारण कुछ है, स्मॉल इंस्टाइन का कारण कुछ है, इकम पे वहाँ कंप्लेन आ रहा है तो कोई कारण है, तो लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर किसी से नहीं है, वहाँ अपने इमोशन से जो सप्रेशन हो रहे हैं उनकी वजह से। यस। सर पर विलेजेस में कम देखने को मिलता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो वहां पे क्या इमोशन रोल नहीं करता उतना, या उनका एक्सरसाइज हो जाता है बहुत सारा, इसकी वजह से उनका हार्ट अच्छा काम करता है। आप कहाँ बैठे हैं? आपका आवाज ऐसे आगे पीछे हो रहा है। मैं गैलरी में बैठा हूँ सर। हाँ, तो वो क्लियरली सुनने नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हेलो। क्लोज लेके। हाँ सर, विलेजेस में जो है रिलीजियस, हाइपरटेंशन कम देखने, हाँ विलेज, गांव में विलेज विलेज, अच्छा हाँ। विलेज, हाँ कम देखने को मिलता है, तो उसका क्या रीजन होगा सर? क्या कम यानी वो देखने को ज्यादा मिलता है? हाइपरटेंशन। विलेज में हाइपरटेंशन कम देखने को मिलता है, यस। जी जी, डायबिटीज भी। शहरी भाग में ज्यादा, यस सर। है ना। हमारे फादर बोलते थे हमेशा कि शुगर, बीपी, हार्ट अटैक ये उन लोगों को होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। यस। अमीरों की बीमारी, हाँ, अमीरों की अमीरों की बीमारी, है ना। तो जब ये निकली थी तब यही कंडीशन, बीमारी बोलते। है ना, जब निकली थी तब यही कंडीशन थी, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी तो ये किसी को भी हो रही है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे, स्टूडेंट, अभी कुछ स्कूलों में सर्वे किया गया था तो जिसमें ये सामने आया कि कितने सारे बच्चों को डायबिटीज निकल रहा है, जुवेनाइल डायबिटीज, कितने सारे बच्चों को। जैसे कि कुछ तभी सर्वे में बताया, वो सही है कि राइट है कि रॉन्ग है पता नहीं, कि कुछ तभी 100 बच्चे के पीछे 5 स्टूडेंट्स को, मतलब 5 चिल्ड्रंस को डायबिटीज निकला है। तो ये क्यों हो रहा है? तो बिकॉज ऑफ कि वो ये बच्चों की कोई गलती नहीं इसमें। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ पेरेंट्स उनको इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस में रख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट students suffering from that in early age of life, diabetes and hypertension. तो ये क्यों हो रहा है? तो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रेस। पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, वो बाजू वाला लड़का देखो, शर्मा जी का लड़का देखो, इसका लड़का देखो। Because of that, that child goes into continuous stressful life. तो अब देखो कि जो सिविलाइज्ड एरिया है और जो रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज में मोस्टली द पीपल वर्क फॉर डेली नीड, है ना। तो उनका कैसा है, आज के दिन का हो गया, निपट गया, कल का कल देखेंगे। तो वहां पे स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, और उसमें भी गवर्नमेंट बहुत रेडीमेड दे रही है
फिर तो काम करने का काम ही नहीं, स्ट्रेस लेने का काम ही नहीं, आएगा हर मंथ बराबर तारीख पे अनाज मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, अकाउंट में ही आ जाता है डायरेक्ट। इसलिए स्ट्रेस बहुत कम है। और यहाँ पे सिविलाइज्ड एरिया में, शहरी भाग में क्या है, वो डेली नीड के लिए अर्निंग नहीं चालू है ना। यहाँ पे डेली नीड्स जो है वो तो ऑलरेडी फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा चाहिए। अब वो ज्यादा आएगा कैसे, तो कुछ तो भी ज्यादा करना पड़ेगा। और वो ज्यादा जो कर रहे हैं तो कुछ इलीगली होता है, कुछ अनवांटेडली होता है, उससे स्ट्रेस निर्माण हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, और वो स्ट्रेस ये डिजीजेस गिफ्ट में दे रहा है। राइट? एम आई राइट? कौन Yes, कौन sir, इस yes, बात से सहमत है? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। यस। सर डायबिटीज क्योर होता है कि नहीं? डायबिटीज देखो, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है वो क्योर होगा, लेकिन जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, जो ऑटोइम्यून में जा रहा है, उससे थोड़ी दिक्कत है। क्योर हो जाता है सर? जी, क्योर? अच्छा, तो हम लोग पेशेंट लें क्योर करने के लिए? इंसुलिन डिपेंडेंट के केसेस आप ले सकते हैं, आप कोशिश तो करो। लेकिन नॉन डिपेंडेंट के तो हो जा रहे हैं ना सर। हाँ ना, जो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट है, मतलब वो इंजेक्शन जो ले रहे हैं, हाँ हाँ, वो बिना लेने वाले तो ठीक हो जा रहे हैं ना, क्योर हो जा रहे हैं पूरा ना, फुल्ली। हाँ हाँ, वो हो रहे हैं ना। लेकिन जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उसमें अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है आपसे कुछ रिजल्ट मिल जाए। ठीक है। इंसुलिन के डोजेस कम हो जाते हैं सर। वो एक्चुअली कैसा है, डिपेंड करता है उसके डाइट पे, वो पेशेंट का रूटीन कैसा है ना। अपन बहुत से डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि इंसुलिन चालू है और डायरेक्ट इंसुलिन बंद करने को लगाते हैं, और सडनली पेशेंट की शुगर लेवल राइज हो जाती है, शूटअप हो जाती है, और फिर कंट्रोल के बाहर हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना कभी भी। पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप सर कम कर सकते हैं। जैसे जैसे शुगर डाउन होगी वैसे वैसे उसका इंसुलिन आप टैपर कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको उसकी ब्लड टेस्ट करके ये भी देखना है कि इंसुलिन लेवल कितनी है। अगर उसमें इंसुलिन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, सीक्रेट ही नहीं हो रहा, और आप इंसुलिन जो वो ले रहा था वो डायरेक्टली स्टॉप कर दे रहे, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। यस यस, राउत जी बोलिए। हाँ सर, ऐसे केसेस में ज्यादातर प्रोबेबल रूब्रिक कौन से रहते हैं सर ज्यादातर? जैसे ब्लॉकेज आ रहे हैं, ऐसा कोई परफेक्ट हर केस में यूज होने वाला रूब्रिक सर नहीं है। अभी अभी ऐसे कई ऐसे व्यवहार हो जाते हैं जहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे नहीं इस टाइप के। जैसे इससे अभी क्वेश्चन पूछे थे हाइपरटेंशन डिपॉजिट होता है, वैसे नहीं प्रोबेबल मैक्सिमम प्रोबेबल रूब्रिक कौन कौन कैसे किस टाइप के रहेंगे सर ज्यादातर? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ कि हर पेशेंट का हिस्ट्री अलग अलग रहेगा, उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस केस में क्या इंपॉर्टेंट है। एक्शन तो सबके ऊपर सेम होगी, लेकिन रिएक्शन हर पेशेंट की अलग होगी। सिचुएशन सेम हो सकते हैं लेकिन रिएक्शन सेम नहीं हो सकती, इसलिए हर पेशेंट में हमें अलग तरीके से डिफरेंटली ही ट्रीट करना पड़ेगा। अगर ऐसा अगर रहता था कि ये सिचुएशन तो सेम है लेकिन उसमें ये कॉमन रूब्रिक उठाना पड़ेगा, नो। हर केस अपने आप में एक रिसर्च है सर। यस, हर केस अपने अपने एक रिसर्च है। वेरी नाइस। किसने कहा? ये बहुत ही बढ़िया कहा। खाद्य। ओके सर, थैंक यू सर। यस। सर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका शुगर लेवल, बीपी, सारे रिपोर्ट्स बहुत खराब भी रहे तो वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं सर, एकदम उनको कुछ टेंशन नहीं रहता है। बड़े हैं रिपोर्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शुगर 400 भी हो गई, कुछ मैम, टेंशन। आपका हैंड राइज करो, आपका आवाज बहुत अच्छा है।
सर मैडम हैंड राइज यस सर, माधुरी मैम है क्या? नहीं सर, रेखा खन्ना। अच्छा, रेखा मैम। वैसे तो आपका आवाज बहुत लाउड है, लेकिन आज कुछ सर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड है डायबिटीज एंड ऑल दैट, बट उनको स्ट्रेस ही नहीं आता है सर। HbA1 10.3 है और शुगर 400 है, फिर भी सर उनको कुछ नहीं होता है, ऐसे है सर। तो कैसे उनको ये करें? यस, तो ऐसे केसेस को क्या कहते हैं? कौन बोलेगा? फ्रियुलस 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 की बजाय इट इज हीडलेस केयरलेस। हाँ, heedless. हीडलेस केयरलेस, है ना? अब देखो, ये पेशेंट साइकोटिक है, डिजीज साइकोटिक है, इसलिए भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ये इसको हम रियल तभी मानना कि ये बता नहीं रहा, इसकी पूरा ऐसा ही बता रहा है कि मेरे लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, सब ओके है, सब मजे में है, सब कोई टेंशन की बात ही नहीं। हमारे घर में तो इतना अच्छा होता है, इतना एंजॉय करते, ये करते, बच्चा अच्छा, बहू अच्छी, पति अच्छा, सब अच्छे, सब अच्छे। इट मीन्स वहां बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना? कुछ तभी हाइडिंग है, उसे बहुत अच्छी तरह से स्पेशली लेना पड़ेगा। अब ये स्पेशली कैसे लेंगे? तो सबसे पहले बाकी घर वालों की हिस्ट्री ले लो, फिर उसमें से पता चलेगा। एक बार उसकी एक चीज भी, एक बात भी अपनी पकड़ ली और वो बात को ट्रेस कर दिया, फिर वो पूरी हिस्ट्री बता देगी कि अरे यार इनको पता है, फिर वो पूरी हिस्ट्री बता देगी। तो बहुत कॉशियसली ऐसे साइकोटिक पेशेंट को ट्रीट करना होता है। मोस्टली अब वो बता नहीं रही, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, खुद की कोई चिंता नहीं है, नो एंजाइटी अबाउट हर डिजीज, नो एंजाइटी अबाउट हर कंडीशन, हर हेल्थ, दैट मीन्स हीडलेस केयरलेस ऐसा भी नहीं। वो है कि नहीं पहले कंफर्म करो वैसा हीडलेस केयरलेस। तो ये कंफर्मेशन जो भी जितने भी साइकोटिक पेशेंट होते हैं उनके जो भी साथ में आए हुए अटेंडेंट्स है, रिलेटिव्स है, उनसे कंफर्म करना। म्यूट कर दिया आपने रेखा में। सर इसको टेरिज्म है लेफ्ट आई में। क्या है? सर डोळ्यावरचा पडदा येतो। डोळ्यावर? हा सर, असा इरिदिमॅटस असं टेरिझम म्हणतात सर त्याला। स्वेलिंग सारखं असं असतं सर। तो लेफ्ट आई में है ना? हाँ सर। इसका मतलब वो लेफ्ट आई से देखना नहीं चाहती, और लेफ्ट आई किसके लिए होती है? मदर, चाइल्ड, है ना? तो बच्चों के प्रति कुछ तो भी प्रॉब्लम है जिसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती, देखना नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। या फिर मदर हो सकती है, मदर को उसके घर में, मदर के यहाँ मदर को कुछ तो भी प्रॉब्लम है बहू से या फिर बेटे से, और ये इसको बार बार फोन पे पता चलता है और वो कंडीशन देखना नहीं चाहती, इसलिए वो पर्दा आ रहा है। और अगर वो दोनों आंख में होता है तो इट मे बी ऑटो इम्यून। डिटैच रेटिना के बाय बर्थ के केसेस कवर हो सकते सर? यस यस, 100%। मदर हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। बाय बर्थ के? बाय बर्थ, यस, कंजेनाइटल। सर लड़का 18-20 साल का हो रहा है, फिर भी कवर होता है? फिर भी कवर होता है। अभी देखो, अभी कल ही एक केस आई मेरे पास, मेरे ही एक जूनियर डॉक्टर है जिनके लड़के को रेटिनाइटिस हुआ है, बहुत बड़ा पैच आ गया रेटिना पे। वो शायद 1-2 दिन में आएंगे लेके, उनके रिपोर्ट्स मैंने देखा कल। मेरे भाई के लड़के का ही डिटैच रेटिना सर, मैं भेजूंगी आपके पास। कहाँ के? नांदुरा। अच्छा, नहीं ये केस लोनार की है। वो हो सकता है, नो प्रॉब्लम। मदर हिस्ट्री इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट। ठीक है। ओके, सो 5:10। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।
Thank you, Thank you, sir. sir. Yes, thank you. Okay, bye bye. See you. Yeah, Yeah. See you tomorrow.